اسلامک شارٹ اسٹیٹس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں۔ بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ مسلمان رومیوں اور غسانیوں کو للکار کر بہت بڑا خطرہ مول لے رہے تھے۔ جنگ کا یہ دستور ہے کہ حملہ آور فوج کی نفری اس ملک کی فوج سے 3 گنا نہ ہو تو دگنی ضرور ہونی چاہیے، کیونکہ جس فوج پر حملہ کیا جاتا ہے وہ قلعہ بند ہوتی ہے اور وہ تازہ دم ہوتی ہے۔ حملہ آور فوج بڑا لمبا سفر کر کے آتی ہے، اس لیے وہ تازہ دم نہیں ہوتی۔ جس فوج پر حملہ کیا جاتا ہے وہ اپنے ملک میں ہوتی ہے، جہاں اسے رسد اور کمک کی سہولت موجود ہوتی ہے۔ اس کے مقابلے میں حملہ آور فوج اس سہولت سے محروم ہوتی ہے۔ وہاں کا بچہ حملہ آور فوج کا دشمن ہوتا ہے۔ مسلمان جب شام پر حملہ کرنے گئے تو ان کی نفری 37,000 تھی۔ 28,000 پہلے سے وہاں موجود تھی اور کم و بیش 9,000 خالد رضی اللہ عنہ لے کر گئے تھے۔ یہ 9,000 مجاہدین فوری طور پر لڑنے کے قابل نہیں تھے۔ جس ملک پر وہ حملہ کرنے گئے تھے وہاں کم و بیش 1.5 لاکھ نفری کی تازہ دم فوج موجود تھی اور مقابلے کے لیے بالکل تیار۔ 5 دنوں کے بھیانک سفر کے بعد جب مجاہدین نے چشمے سے پانی پی لیا، کھانا بھی کھا لیا، تو ان پر غنودگی کا طاری ہونا قدرتی تھا۔ انہیں توقع تھی کہ انہیں کچھ دیر آرام کی مہلت ملے گی۔ آرام ان کا حق بھی تھا، لیکن اپنے سالار اعلیٰ خالد رضی اللہ عنہ کو دیکھا۔ خالد رضی اللہ عنہ اب اونٹ کی بجائے اپنے گھوڑے پر سوار تھے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ایک لمحے کا بھی آرام نہیں ملے گا۔ مورخ واقدی نے لکھا ہے کہ خالد رضی اللہ عنہ نے ہلکی سی زرہ پہن رکھی تھی۔ انہوں نے یہ زرہ اس چشمے پر آ کر پہنی تھی۔ زرہ مسلمہ کذاب کی تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے جب اسے شکست دی تھی تو اس کی زرہ اتروا کر اپنے پاس رکھ لی تھی۔ یہ ارتداد پر فتح حاصل کرنے کی یادگار تھی۔ اس فتح کی ایک نشانی اور بھی خالد رضی اللہ عنہ کے پاس تھی۔ یہ تلوار تھی۔ یہ بھی مسلمہ کذاب کی ہی تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے وہی تلوار کمر سے باندھ رکھی تھی۔ واقدی کے مطابق خالد رضی اللہ عنہ کے سر پر زنجیروں والی خود تھی اور خود پر انہوں نے امامہ باندھ رکھا تھا۔ امامے کا رنگ سرخ تھا۔ خود کے نیچے انہوں نے جو ٹوپی پہن رکھی تھی وہ بھی سرخ رنگ کی تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں سیاہ اور سفید رنگ کا پرچم تھا، جو صرف اس لیے مقدس نہیں تھا کہ یہ قومی پرچم تھا، بلکہ اس لیے کہ یہ پرچم ہر لڑائی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ رکھتے تھے، اور جب آپ علیہ السلام نے خالد رضی اللہ عنہ کو سیف اللہ کا لقب عطا فرمایا تو اس کے ساتھ انہیں یہ پرچم بھی دیا۔ اس پرچم کا نام عقاب تھا۔ 9,000 مجاہدین میں جہاں صحابہ کرام بھی تھے، وہاں خالد رضی اللہ عنہ کے اپنے فرزند عبد الرحمن بھی تھے، جن کی عمر 18 سال تھی، اور ان میں امیر المومنین ابو بکر رضی اللہ عنہ کے نوجوان فرزند بھی تھے، ان کا نام بھی عبد الرحمن ہی تھا۔ مجاہدین کھا پی کر ادھر ادھر بیٹھ گئے۔ انہوں نے اپنے سالار اعلیٰ کو گھوڑے پر سوار اپنے درمیان گھومتے پھرتے دیکھا تو سب اٹھ کھڑے ہوئے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے زبان سے کچھ بھی نہ کہا۔ وہ ہر ایک کی طرف دیکھتے اور مسکراتے۔ ان کی خود اور زرہ دیکھ کر اور ان کے ہاتھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پرچم دیکھ کر مجاہدین سمجھ گئے کہ ان کے سالار اعلیٰ چلنے کو تیار ہیں۔ تمام مجاہدین کسی حکم کے بغیر اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنے اونٹوں کی بجائے گھوڑوں پر سوار ہو گئے۔ وہ جان گئے کہ اللہ کی شمشیر تھوڑی دیر کے لیے بھی نیام میں نہیں جائے گی۔ خالد رضی اللہ عنہ کی جاں فضا مسکراہٹ نے پورے لشکر کی تھکن دور کر دی۔ لشکر چلنے کے لیے تیار ہو گیا۔ ایک آدمی پرجوش لہجے میں کہتا اور دوڑتا آ رہا تھا، ولید کے بیٹے یہ دیکھ ولید کے بیٹے، اللہ نے میری بینائی مجھے لوٹا دی ہے، میں دیکھ سکتا ہوں، میں تجھے دیکھ رہا ہوں۔ کسی نے بلند آواز سے کہا، بے شک اللہ ایمان والوں پر کرم کرتا ہے، اللہ رحیم و کریم ہے۔ یہ تھا رافع بن عمیرہ، جس نے اس لشکر کی رہنمائی اس خطرناک صحرا میں کی تھی۔ وہ آشوب چشم کا مریض تھا۔ ریت کی چمک اور تپش سے اس کی بینائی ختم ہو گئی تھی، لیکن جسم میں چشمے کا پانی گیا اور آنکھوں میں پانی کے چھینٹے پڑے تو رافع کی بینائی واپس آ گئی۔ خالد رضی اللہ عنہ کو اس کی بہت زیادہ خوشی ہوئی، جس کی ایک وجہ یہ تھی کہ ان کے لشکر کا رہنما اور میدان جنگ کا شہسوار ہمیشہ کے لیے اندھا نہیں ہو گیا تھا، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ رافع بن عمیرہ خالد رضی اللہ عنہ کا داماد تھا۔ مجاہدین بغیر آرام کیے اپنی اگلی منزل کو جا رہے تھے۔ اب ان کا سفر سہل تھا، لیکن اس دشمن پر فتح سہل نظر نہیں آتی تھی جن سے وہ لڑنے جا رہے تھے۔ وہ دشمن بہت طاقتور تھا، اس کے وہاں قلعے تھے، وہ اس کی زمین اور اس کا ملک تھا۔
मुसलमान खुले मैदान में थे और अपने मुस्तकर से सैकड़ों मील दूर थे। उन्हें अपने लिए और अपने जानवरों के लिए खुराक का खुद ही इंतजाम करना था और इनके लिए ये बड़ा मसला था। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु जब अपने लश्कर के साथ शाम की सरहद की तरफ बढ़ रहे थे, उस वक्त गुस्सानी बादशाह जबला बिन अल-अहम अपने उमरा और सालारों को हुक्म दे चुका था कि मुसलमानों की फौज सरहदों पर आ गई है और उसे सरहदों पर ही खत्म कर देना है। उस वक्त खालिद बिन सईद को रूमी फौज शिकस्त दे चुकी थी और मदीना का 28,000 मुजाहिदीन का लश्कर 4 हिस्सों में शाम की सरहद पर पहुंच चुका था। गुस्सानी बादशाह जबला ने अपने उमरा और सालारों से कहा था, हमने रूमियों को शिकस्तें दी हैं। रूमियों से बढ़कर जाबिर और जंगजू और कौन हो सकता है। हमने इस जबरदस्त फौज को घुटनों बिठाकर उससे ये इलाका ले लिया था जिस पर आज हमारी हुक्मरानी है। तुम्हारे सामने मुसलमानों की कोई हैसियत ही नहीं। ये मत सोचो कि मुसलमानों ने फारसियों को शिकस्त दी है और उन्हें उठने के काबिल नहीं छोड़ा। फारसी बुज़दिल थे। अपने आबा व अजदाद की शुजात को याद करो। अगर तुमने अपने ऊपर मुसलमानों का खौफ तारी कर लिया तो रूमी ही जो आज हमारे भाई बने हुए हैं तुम पर चढ़ दौड़ेंगे। फिर तुम 2 दुश्मनों के दरमियान पिस जाओगे। मुसलमानों की तादाद बहुत थोड़ी है, वो ज्यादा दिन तुम्हारे सामने नहीं ठहर सकेंगे। एक मोअम्मर सालार ने कहा, शहंशाह गुस्सान, उनकी तादाद थोड़ी है तो क्या वजह है कि फारिस के तमाम नामवर सालार उनके हाथों मारे गए हैं। ये कहना ठीक नहीं कि फारसी बुज़दिल थे। क्या हम अपने आप को धोखा नहीं दे रहे? क्या मुसलमानों ने फिरास के मैदान में रूमियों और फारसियों की मुत्तहिदा फौज को शर्मनाक शिकस्त नहीं दी? जबला बिन अल-अहम ने कहा, जरूर दी है। मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ। अगर तुमने मुसलमानों को अपनी तलवारों के नीचे रख लिया तो रूमियों और फारसियों पर तुम्हारी बहादुरी की दहशत बैठ जाएगी और तुम जानते हो कि इसका तुम्हें क्या फायदा पहुँचेगा। मेरा हुक्म ये है कि सरहद की हर एक बस्ती में ये पैगाम पहुंचा दो कि मुसलमानों का लश्कर या उनका कोई दस्ता किसी तरफ से गुजरे, उस पर हमला कर दो और उसे ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश करो। हर वो शख्स के जिसने गुस्सानी माँ का दूध पिया है वो अपने कबीले की आन पर जान कुर्बान कर दे, लेकिन 3-4 मुसलमानों की जान जरूर ले। मैं अपने आप को धोखा नहीं दे रहा। मैं उन मुसलमानों को कमजोर नहीं समझता जो अपने वतन से इतनी दूर आ गए हैं। वो अपने अकीदे के बलबूते पर आए हैं। उनका अकीदा है कि उनका मजहब सच्चा है और वो खुदा के बरतर बंदे हैं और खुदा उनकी मदद करता है। अगर तुम अपने अकीदों को मजबूती से पकड़ लो तो तुम उन्हें कुचल कर रख दो। कबीले के बच्चे बच्चे को लड़ाओ, औरतों को भी लड़ाओ और हर कोई ये कोशिश करे कि मुसलमानों को यहाँ से खाने को एक दाना न मिले, पीने को पानी की बूंद न मिले और उनके ऊंट और घोड़े इस घास की एक पत्ती भी न खा सकें जो तुम्हारी जमीन ने उगाई है। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु की अगली मंजिल सुआ थी, जिसके मुताल्लिक उन्हें बताया गया था कि सरसब्जो शादाब जगह है। उनके रास्ते में पहली बस्ती आई तो उससे कुछ दूर कमोबेश 40 घुड़सवारों ने मुसलमानों के हिरावल पर इस तरह हमला किया कि घोड़े अचानक टीलों के पीछे से निकले, सरपट दौड़ते आए और बर्छियों से मुजाहिदीन पर हल्ला बोल दिया। मुजाहिदीन भी शहसवार थे और इस तरह की छापामार लड़ाई में महारत रखते थे, इसलिए उन्हें ज्यादा नुकसान नहीं उठाना पड़ा। कुछ मुजाहिदीन जख्मी हो गए और उन्होंने हमलावर सवारों में से 3-4 को गिरा लिया। ये गुस्सानी सवार थे जिन्होंने पहले ही हल्ले में मुसलमानों को बता दिया था कि वो लड़ना जानते हैं और उनमें लड़ने और मरने का जज्बा भी है। वो हल्ला बोलकर आगे निकल गए और बिखर गए। दूर जाकर वो फिर वापस आए। अब मुसलमान पूरी तरह तैयार थे। गुस्सानियों ने हल्ला बोला। वो बर्छियों और तलवारों से मुसल्लह थे। मुसलमानों ने उन्हें घेरे में लेने की कोशिश की, लेकिन वो बेजिगरी से लड़ते हुए निकल गए। उनका अंदाज जमकर लड़ने वाला नहीं था। तकरीबन उतने ही गुस्सानी सवारों ने मुजाहिदीन के लश्कर के अकबी हिस्से पर हमला किया। ये भी छापामार किस्म का हल्ला था। घोड़े सरपट दौड़ते आए और आगे निकल गए। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु लश्कर के वस्त में थे। उन्हें इत्तला मिली तो उन्होंने लश्कर की तरतीब बदल दी, लेकिन वो लश्कर को ज्यादा न फैला सके क्योंकि वो इलाका हमवार नहीं था। कुछ देर के बाद खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु के सामने चंद एक गुस्सानी कैदी लाए गए। उन्हें मुजाहिदीन ने घोड़ों से गिरा लिया था। उनसे जब जंगी नौयत की मालूमात हासिल की जाने लगी तो उन सब ने बड़ी जुर्रत से बातें की। एक कैदी ने कहा, तुम जिधर जाओगे तुम पर हमले होंगे, जब आदमी नहीं होंगे तो तुम पर औरतें हमला करेंगी। एक और कैदी ने कहा। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने पूछा, तुम्हें किसने बताया है कि हम तुम्हारे दुश्मन हैं? कैदी ने जवाब दिया, दुश्मन नहीं तो यहाँ क्यों आए हो? उन कैदियों ने और कुछ न बताया कि उनकी फौज कितनी है और कहाँ कहाँ है। उनसे ये पता चल गया कि तमाम सरहदी बस्तियों में उनके बादशाह का ये हुक्म पहुंचा था कि मुसलमानों पर हमले करते रहें, ताकि जब मुसलमान गुस्सानियों की फौज के मुकाबले में आए तो वो थके हुए हों और कमजोर हो चुके हों। कैदी ने कहा, यहाँ से तुम्हें अनाज का एक दाना नहीं मिलेगा।
पीने को पानी का एक कतरा नहीं मिलेगा। एक और ने कहा, तुम्हारे ऊंटों और घोड़ों को हम भूखा मारेंगे, हमारी जमीन से ये घास की एक पत्ती नहीं खा सकेंगे। एक और कैदी बोला, क्या तुम्हारी मौत तुम्हें यहाँ ले आई है? लड़ने आए थे तो खालिद बिन वलीद को साथ लाते। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा, वो आ जाता तो तुम क्या करते? कैदी ने जवाब दिया, सुना है उसके सामने उसका कोई दुश्मन पांव पर खड़ा नहीं रह सकता, और सुना है कि वो बड़ा जालिम आदमी है, कैदियों को अपने हाथों कत्ल कर देता है। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, अगर वो इतना जालिम होता तो तुम इस वक्त अपने पांव पर खड़े न होते, तुम्हारे सर तुम्हारे कंधों पर न होते। कैदी ने पूछा, कहाँ है वो? खालिद बिन वलीद ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे सामने खड़ा है। फिर बोले, मैं तुम्हारी बहादुरी की तारीफ करता हूँ। ऐसा हमला बहादुर क्या करते हैं जैसा तुमने किया। तमाम कैदियों पर खामोशी तारी हो गई थी और वो हैरत ज़दा तासुर चेहरों पर लिए खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को देख रहे थे। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा, क्या तुम मुझसे डर रहे हो कि मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा? उनमें से कोई भी न बोला। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने खुद ही अपने सवाल का जवाब दिया, बोले, नहीं, तुम्हें कत्ल नहीं किया जाएगा, तुम्हारे बहुत से भाई अभी हमारी कैद में आएंगे, किसी को कत्ल नहीं किया जाएगा। कत्ल वही होगा जो हमारे मुकाबले में आएगा। क्या तुम गुस्सान के लश्कर के आदमी हो? कैदी ने जवाब दिया, नहीं, हम इसी बस्ती के रहने वाले हैं। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, तुम मेरा नाम किस तरह जानते हो? एक अधेड़ उम्र कैदी ने जवाब दिया, इब्ने वलीद, तेरा नाम गुस्सान के बच्चे बच्चे ने सुना है। गुस्सान की फौज तेरे नाम से वाकिफ है। फारिस की फौज को शिकस्त देने वाला सालार आम किस्म का इंसान नहीं हो सकता, लेकिन इब्ने वलीद अब तेरा मुकाबला कबीला गुस्सान से है। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु उस शख्स के साथ बहस नहीं करना चाहते थे। उन्होंने उसके साथ और दूसरे कैदियों के साथ दोस्ताना अंदाज में बातें जारी रखी और उनसे कुछ बातें मालूम कर ली। मौरिख वाक़िदी ने लिखा है कि खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को अंदाजा ही नहीं था कि गुस्सानियों और रूमियों तक उनका सिर्फ नाम ही नहीं पहुंचा, बल्कि उनके नाम के साथ कुछ रिवायतें और हिकायतें भी पहुंच गई हैं। बाज लोग खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को माफ़ाकुल फितरत शख्सियत समझने लगे थे। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु आगे बढ़ते गए। गुस्सानियों के गिरोहों ने 2 और जगहों पर मुसलमानों के लश्कर पर हमला किया। एक हमला जो छापामार किस्म का था, खासा सख्त था। मुसलमान चूंकि चौकस और तैयार थे, इसलिए उनका ज्यादा नुकसान न हुआ, हमलावरों का जानी नुकसान ज्यादा हुआ। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को कैदियों से मालूम हो चुका था कि उन पर इन हमलों का मकसद क्या है। उन्होंने सोचा कि इस तरह मज़ाहमत जारी रही तो उन्हें अपने लश्कर के खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं मिलेगा। वो सुबह के करीब ज़ोहर और असर के दरमियान पहुंचे तो उन्हें बड़ा ही वसी सब्ज़ाज़ार नजर आया। उसमें बेशुमार भेड़ें, बकरियां और मवेशी चर रहे थे। ये वसी चरागाह थी। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस ख्याल से कि पेशतर इसके कि उन पर हमला हो, उन्होंने हुक्म दे दिया कि तमाम भेड़, बकरियां और मवेशी पकड़ लिए जाएं और उन्हें खाने के लिए और उनमें जो दूध देने वाले जानवर थे उन्हें दूध के लिए इस्तेमाल किया जाए। मुजाहिदीन उन जानवरों को पकड़ने लगे तो बस्ती वालों ने मुसलमानों पर हमला कर दिया। गुस्सानियों के घोड़े अच्छे थे और उनके हथियार भी, लेकिन मुसलमानों के आगे ज्यादा देर न ठहर सके। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने चरागाह पर कब्जा कर लिया। जब बस्ती में गए तो वहाँ लड़ने वाला एक आदमी भी नहीं था। वो बूढ़े थे और औरतें थीं और बच्चे। मुसलमानों को देखकर वो भागने लगे। औरतें अपने बच्चों को उठाए छुप गईं या भाग उठी। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के हुक्म से उन सबको रोक कर कहा गया कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। अगर बस्ती से मुसलमान लश्कर के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई तो बस्ती को उजाड़ दिया जाएगा। मुखबरों ने खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को इत्तला दी कि कुछ दूर आगे एक कला है जिसमें ईसाई फौज है और उसका सालार रूमी है। ये इत्तला भी मिली कि सुआ के भागे हुए गुस्सानी इस कले में चले गए हैं। उस कले का नाम अरक था। सूरज गुरूब हो चुका था, शाम गहरी हो गई। कले के दरवाजे सूरज गुरूब होते ही बंद हो गए। उसके बाद कले के संतरियों को जो दीवार पर टहल रहे थे घोड़ों के टाप सुनाई दिए। संतरियों ने खबरदार होशियार की सदाएं लगानी शुरू कर दी। कमानदार दीवार पर गए और नीचे देखा, बहुत से घोड़े दौड़े आ रहे थे। वो कले के बड़े दरवाजे पर आकर रुक गए। अभी और घोड़े और ऊंट आ रहे थे। दरवाजे के ऊपर एक बुर्ज से एक कमानदार ने पूछा, कौन हो तुम लोग? बाहर से एक सवार ने जवाब दिया, हम गुस्सानी हैं। मुसलमानों का लश्कर आ रहा है। हमने सुआ में उन्हें रोकने की कोशिश की थी, लेकिन हम उनके मुकाबले में जम न सके। हम बस्ती में जाते तो मुसलमान हमें जिंदा न छोड़ते। कले से पूछा गया, क्या तुम पनाह लेने आए हो? एक गुस्सानी सवार ने जवाब दिया, पनाह भी लेंगे और मुसलमानों के खिलाफ लड़ेंगे भी। तुम्हें हमारी जरूरत होगी। रूमी सालार को बुलाया गया। उसने उन लोगों से अपनी तसल्ली के लिए कई सवाल किए और उनके लिए कले का दरवाजा खुलवा दिया। उन्होंने रूमी सालार को तफसील से बताया कि मुसलमानों की नफरी कितनी है और अब वो कहाँ है। अगली सुबह तुलू हुई तो खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु का लश्कर कले तक पहुँच गया था और कले को मुहासरे में ले रहा था। ईसाई फौज जो कले में थी कले की दीवारों पर चली गई और फौज का एक हिस्सा कले के बड़े दरवाजों से कुछ दूर खड़ा हो गया। उस हिस्से को ऐसी सूरत हाल के लिए तैयार रखा गया कि दरवाजा टूट
टूट जाए तो ये दस्ता हमला आवरों को अंदर न आने दे और हुक्म मिलने पर बाहर जाकर मुसलमानों पर हमला करे। किले के बाहर ललकार और नारे गरज रहे थे। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के हुक्म से राफि बिन उमैरा ने बुलंद आवाज से कहा, किला हमारे हवाले कर दो, वरना हर गुस्सानी कत्ल होने के लिए तैयार हो जाए। हथियार डाल दो और किसी को बाहर भेजो जो हमारे साथ सुलह की शर्तें तय करे। ऊपर से एक कमांदार ने ललकार कर कहा, ऐ मुसलमानों, ये किला तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। वाक़िदी लिखता है कि किले में एक ज़ईफुल उमर आलिम था। उसने रूमी सालार को बुलाया। उस आलिम की कदर मंजिलत थी और गुस्सानी उसका हुक्म मानते और उसकी हर बात को बरहक तस्लीम करते थे। आलिम ने पूछा, क्या इस फौज का परचम काले रंग का है? रूमी सालार ने कहा, हाँ मुकद्दस बाप, उनका झंडा नजर आ रहा है जो सफेद और काले रंग का है। आलिम ने पूछा, क्या ये फौज सहरा में उस रास्ते से गुजर कर आई है जिस रास्ते से कभी कोई नहीं गुजरा? मौरिख वाक़िदी तबरी और इब्ने यूसुफ ने लिखा है कि 2 मुखबरों ने उस आलिम को बताया कि मुसलमानों की फौज सहरा के उस हिस्से में से गुजर कर आई है जहाँ ऊंट भी नहीं जाते और जहाँ सांप भी जिंदा नहीं रह सकता। मुअम्मर आलिम ने पूछा, क्या उस फौज के सालार का कद ऊंचा है? क्या उसका जिस्म गठा हुआ है और उसके कंधे चौड़े हैं? किसी ने जवाब दिया, मुकद्दस बाप, तो इन सब के ऊंचे हैं और जिस्म भी सबके गठे हुए हैं, लेकिन उसके कंधे सबसे चौड़े हैं। आलिम ने पूछा, क्या उसकी दाढ़ी ज्यादा घनी है और क्या उसके चेहरे पर कहीं कहीं चीचक के गहरे दाग हैं? किसी और ने जवाब दिया, हाँ मुकद्दस दरवेश, उसकी दाढ़ी दूसरों से ज्यादा घनी है और ये दाढ़ी उसके चेहरे पर बहुत अच्छी लगती है और उसके चेहरे पर चीचक के कुछ दाग हैं। उस आलिम दरवेश ने रूमी सालार और ईसाई सरदारों की तरफ देखा और कुछ देर खामोश रहा। फिर उसने अपना सर दाएं बाएं 2 बार हिलाया। उसने कहा, ये वही शख्स है जिसका मुकाबला करने की हिम्मत तुम में से किसी में भी नहीं। रूमी सालार ने कहा, तू जिसका एहतराम हम सब पर लाजिम है, तू क्या कह रहा है? वो तो हमारा कैदी होगा जिससे तू हमें डरा रहा है। आलिम ने कहा, क्या तूने उनका अंजाम नहीं देखा जिन्होंने उसका मुकाबला किया? एक ईसाई सरदार ने पूछा, क्या वो आसमानों का कोई देवता है जिसे जमीन का कोई इंसान शिकस्त नहीं दे सकता? आलिम ने कहा, ऐ ईसाई सरदार, वो चौड़े कंधों और चीचक के दागों वाला जो मदीने से आया है, उसके पास अलम है और मेरे पास इल्म है। तेरे पास न अलम है न इल्म। तू रूमी नहीं, तू गुस्सानी भी नहीं और जो मुझे नजर आता है वो तू नहीं देख सकता और तू कहता है कि वो आसमानों का देवता तो नहीं। सुन रूमी सालार, और तू भी सुन ईसाई सरदार, जो अपने लश्कर को उस सहरा में से जिंदा गुजार लाया जहाँ की रेत पहले अंधा करती है, फिर जिस्म को खुश्क लकड़ी बनाती है और फिर जला देती है, वो इंसान आसमानों के देवताओं को भी शिकस्त दे सकता है। मैं कुछ और नहीं कहता सिवाय इसके कि किला उसके हवाले कर दो और अगर लड़ना चाहो तो अक्ल और होश से काम लेना, लेकिन अक्ल तुम्हारा साथ नहीं देगी। उस वक्त जब ये आलिम और दरवेश कलादार और ईसाई सरदारों को बता रहा था कि वो खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के मुकाबले में आए, तो जरा सोच लें, उस वक्त किले के अंदर मुसलमानों की ललकार सुनाई दे रही थी, दरवाजे खोल दो, हथियार डाल दो, हम किला लेने आए हैं, अपने लश्कर को, औरतों को और बच्चों को बचाओ। रूमी सालार ईसाई सरदारों के साथ किले की दीवार पर आया और हर तरफ जाकर देखा। उसे मुसलमानों की तादाद उतनी ज्यादा दिखाई नहीं दे रही थी कि वो किला सर कर लेती, लेकिन वो मुसलमानों का परचम उकाब देखता तो वो अपने आप में धचका महसूस करता। रूमी सालार ने किसी से पूछा, क्या यही है सारा लश्कर? यही नहीं हो सकता। उसे जवाब मिला, ये लश्कर इतना ही है। उसने हुक्म दिया, तीरों का मैं बरसा दो इन पर। करीब आए तो बर्छियां फेंको। दीवार से तीरों की बौछारें आने लगी। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने गला फाड़ कर कहा, खुदा की कसम, ये तीर हमें नहीं रोक सकते। ऐसे तीर हम पर बहुत बरसे हैं। तीरंदाजों को आगे करो, दरवाजों पर हल्ला बोल दो और सबसे कह दो कि ये शाम का पहला किला है। अगर हम पहले किले पर हार गए तो शिकस्त हमारा मुकद्दर बन जाएगी।